কহেন বেশ দাস পূর্ণ প্রজ্ঞ পদ্মনাভ জ্যোতি নিয়মাদয়ন্তে অচ্যুতবরম সবলি অঙ্গীকার করে অক্ষবির শিষ্যয় পিতা নামে পরিচয় তরে তাহা হইতে দয়ানিধি তার দাস বিদ্যানিধি রাজেন্দ্র হইল তাহা হইতে তাহার কিঙ্কর জয় ধর্ম নামে পরিচয় পরম্পরা জন ভালো মতে জয় ধর্ম দাসে খ্যাতি শ্রী পুরুষোত্তম জ্যোতি তাহা হইতে ব্রহ্মণ তীর্থ সুরি ব্যাস তীর্থ তার দাস লক্ষ্মীপতি ব্যাস দাস তাহা হইতে মাধবেন্দ্র পুরী মাধবেন্দ্র পুরী বর শিশবর ঈশ্বর নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত বিভু ঈশ্বর পুরী কে ধন্য করিলেন শ্রী চৈতন্য জগদ্গুরু গৌর মহাপ্রভু মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য রাধা কৃষ্ণ নহে অন্য রূপানুগ জনের জীবন বিশম্ভর প্রিয়ঙ্কর শিশরূপ দামোদর শ্রী গোস্বামী রূপ সনাতন রূপ প্রিয় মহাজন জীব রঘুনাথ হন তার প্রিয় কবি কৃষ্ণ দাস প্রিয় বর নরোত্তম সেবাত পর যার পদ বিশ্বনাথ আস अरे विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ तार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन तेजार मोद शिवासभान विवर सदा शिव सेवत्व तार द्वैत दश नाम प्रभुपाद अंतरंग श्री स्वरूप रूपानु श्री केशव भक्ति प्रज्ञानम गौरी वेदांत वेतामावाद तमहंता गौरवाणी प्रचाराचार धाम केश प्रिय महाजन वामन नारायण गौरवाणी जादेर प्राण धन এই সব হরিজন গৌরাঙ্গের নিজজন তাদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম জয় गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा परंपरा जय गुरु परंपरा जय वृंदावन बासी जत वैष्णवेर गण प्रथमे वंदना करी सबार चरण नीलाचल बासी जत महाप्रभुर्गण भूमिते पड़िया बंद सबार चरण नीलाचल बासी जत महाप्रभुर्गण भूमिते पड़िया बंद सबार चरण नवद्वीप बासी जत प्रभुर्भक्त सबार चरण बंद हयाय अनुरक्त महाप्रभुर्भक्त जत गौड़ देशे स्थिति
সবার চরণ বন্ধ করিয়া প্রণতি। ও যে দেশে বৈশে গৌরাঙ্গের গণ, ঊর্ধ্ববাহু করি বন্ধু সবার চরণ। হইয়াছেন হইবেন প্রভু যত দাস, সবার চরণ বন্ধু দন্তে করি ঘাস। ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জন, এ বেদে পুরাণে গুণ গায় যে বাসুন। মহাপ্রভুর গণ সভাপতিত পাবন, তাই লোভে মই পাপি লইনু শরণ। বন্দনা করিতে মই কত শক্তি ধরি, তম বুদ্ধি দোষে মই দম্ভ মাত্র করি। তথাপি মুখের ভাগ্য মনের উল্লাস, দোষ ক্ষমে মই অধমে কর নিজ দাস। সর্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যম বন্ধ ছুটে, জগতে দুর্লভ হইয়া প্রেম ধন লুটে। মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়, দেবকী নন্দন দাস এই লোভে। জয় সচিনন্দন জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর। ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই, এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবন তোমা বিনে কে নাই, পতিত পাবন তোমা বিনে কে নাই। আরে কাহার নিকটে গেলে পাব দূরে যায়, এমন দয়াল প্রভু কে বা কোথা পায়। গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ। হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি নাম, তোমার স্থানে অপরাধে নাই কইরান। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম, গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি, নরোত্তমে কহ দয়া আপনারে বলি। নরোত্তমে কর দয়া জয় নরোত্তম ঠাকুর, নরোত্তম নরোত্তম ঠাকুর নরোত্তম। নিতাই গো নমনি আমার, নিতাই গো নমনি, নিতাই গো নমনি আমার, নিতাই গো নমনি। আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাই লয় বনি, প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌর দেশে। ডুবিলা কত গণ দিনহীন ভাসে, আর দিনহীন পতিত পামর নাই বাঁচে। ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবা তারে যায়, আবদ্ধ করুণা সিন্ধু কাটিয়া মোহন। ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বন, শোন বলে মোর নিতাই জীবন বুঝিল। জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী কই, নিতাই দয়াল গো, দয়াল নিতাই दयाल गो। और कौन से करना? যদি গৌরাঙ্গ নইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিত দে। যদি গৌরাঙ্গ নইত তবে কি হইত,
কেমনে ধরি তদে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে প্রেম রস রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাত কে हर मधुर वृंदा विपिन माधुरी मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार प्रवेश चातुरी सार बर यदुवती भावेर भकती सकती होई तो कार बर यजुवती भावेर भकती सकती होई तो कार हर गाओ पुनः पुनः गौरांगे रघुन गाओ पुनः पुनः गौरांगे रघुन सरल होइया मन सरल होइया मन ए भव सागरे एमन दयाल ना देखी जे एक जन ए भव सागरे एमन दयाल ना देखी जे एक जन हरे गौरांग बोलिया नगेनु गोलिया गौरांग बोलिया नगेनु गोलिया के मने दरिनु दे के मने दरिनु दे नर हरिया पाषाण दिया के मने गोरिया छे नर हरिया पाषाण दिया केमने गौरिया जय सचिनंदन जय गौरा हरि सचिनंदन जय गौरा हरि गाओ आज ललिता सप्तमी है ना ललिताष्टक गाओ याद है प्रभु जी हाँ ललिताष्टक कोई होगा नहीं ललिताष्टक करो क्योंकि राधा मुकुंद पाद संभवा मिला अरे हिंदी लो बंगला क्या करोगे ये लो ललिताष्टक लो ललिताष्टकम देखो दो ही मिला अरे ललिताष्टक लिखा है वहीं पर खोजो राधा मुकुंद पान
मुंद पदव भव घर्म बिंदु निर्मंचन उपकरण प्रिय संगम ललितां ललितां नमामि राकासुधा किरण मंडल दंडियं वक्त्रश्रियश्चकित चाक्षमूरनेत्रं राधा प्रसादादं विना कदाप्रसिद्धं देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि रासोल्लसभुजगशत्रुपकत्रचित्र पट्टांशुरावरणकुञ्चुलिकाञ्चन्ते गोरोचनारुचिविगहनगौरिमानं देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि व्रजेन्द्रतनये तनुसुष्टवां मा दक्षिणा भवकलङ्किनी लाघवाय राधे गिरं सेनुहितामिति शिक्षयन्ते देवीं गुणैः ललितां ललितां नमामि राधामपि व्रजपते कृतात्मजेन कूटं मनादपि विलोहितास्ति भागभङ्गिभिरान्तचिरेण विलज्जयन्ते देवीं गुणैः ललितां ललितां नमामि वात्सल्यवृन्दपसते पशुपालराज्ञा सखानुशिखनकलासु गुरुसखीनां राधावल्लभरजविशेषां देवीं गुणैः ललितां ललितां नमामि चम्पामपि व्रजकुले विषभानुजाया पृच्छसपक्षपदवीं देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि राधा व्रजन्दसुतसङ्गरमङ्गचर्यां वर्जां विनिश्चितावतिल अखिल मोसेवं साङ्गपोलप्रियसखे निकुम्भरामुखां देवीं गुणैः सुललितां ललितां नमामि नमुनि ललिता गुणलालितानि पद्मानि च पठति निर्मलदृष्टिरस्तु वृत्ताविकारसयति जनङ्ने जबन्धमध्ये सङ्कीर्तितापि कुलोज्जलकल्पवल्ली ह्रीं सुललितां ललितां नमामि ह्रीं सुललितां ललितां ह्रीं सुललितां नमामि ह्रीं ललितां ललितां नमामि ललिता देवी जय ललिता देवी ललिता देवी जय ललिता शाखा देवी ललिता देवी जय ललिता राधे जय बोलो राधे जय जय माधव देव
राधे जय जय माधव दयिते गोकुलतारुणी माण्डलमायिते राधे जय जय वर्धनवेशे हरिणि सुटावृ दाविपिने राधे जय जय शिलेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे राधे जय जय करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणां गुरुमयि करुणावरीते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय महामंत्र जल्दी हरे कृष्ण किताब दे दो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम ये इंटरनेट चल रहा है राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य माइक भी नहीं है, चला गया ना इन्वर्टर का, सब चला गया, केवल यही चल रहा है। आज सब गया कि लाइट ही नहीं थी आज, लाइट बार बार फल से आ जा। हाँ, रात को मैं सो नहीं पाया, एक बार इधर से वो अंदर से बाहर से पागल हो गया। लाइट आता है ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरातिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतिमद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतिमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतिमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत सुंदर पवित्र दिवस है। आज ललिता सप्तमी माना गया है। ललिता देवी की आप आविर्भाव तिथि मनाया जाता है। श्रीमती राधा जी के 8 प्रधान सखियों में ललिता की जो है विशेष बताया गया। हमारे आचार्य पादों ने लिखा है श्री राधा जी के 5 प्रकार के जो है सखी मानी जाती है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम पृष्ठ सखी। सखी में विशेष करके कुसुमिका,
वृंदा आदि ये समस्त सखी के नाम कहा गया। नित्य सखी में कस्तूरी आदि नित्य सखियों के नाम है। प्राण सखी में शशिमुखी आदि ये समस्त प्राण सखी के नाम है। प्रिय सखी सुरंगाक्षी और प्राण पृष्ठ सखी, ये 8 सखियों के नाम आ रहे हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, तुंगविद्या और सुदेवी। अभी ललिता देवी के बारे में थोड़ा परिचय दे रहे हैं। पहले ललिता देवी के ध्यान के बारे में कहा गया। गुरुचनारुचि मनोहर कांति देहा, मयूर पुच्छ तुलित छवि चारु चेलाम, राधे तव प्रिय सखी च गुरु सखीनां, ताम्बूला भक्ति ललितांग ललितांग नमामि। हे राधे, गुरुचना के भांति जिनके अंग की मनोहर कांति है, जो मयूर पुच्छ के मनोहर विचित्र साड़ी धारण करती है, तुम्हारी तांबुल सेवा जिनके अधिकार में है, इस सेवा में जो अत्यंत ललित यानी सुंदर हो, वही जो सखियों में गुरु है, और तुम्हारी उनका प्यारी सखी श्री ललिता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ललिता जी के माता के नाम शारदा, क्या बताया? शारदा। पिताजी के नाम विशोक गोप। अंगकांति गुरुचना विशोक गोप, विशोक गोप। अंगकांति ललिता देवी के अंगकांति कैसे है ना? गुरुचना जैसी है। परिधान वस्त्र मयूर पुच्छ के भांति है। उनकी कुंज का रंग कैसे है? बड़े विद्युत वर्ण। विद्युत वर्ण समझते हैं? लाइटनिंग, लाइटनिंग, आकाश में जो बिजली चमकता है, लाइटनिंग, इसलिए कहता है विद्युत वर्ण है। सेवा है। ललिता देवी की सेवा क्या है? राधा कृष्ण की तांबुल सेवा करती है ये। यद्यपि अनेकों सेवा में परिपाटी जानती है, तथापि इनकी विशेष सेवा क्या है? तांबुल। ये विशुद्धा खंडिता इनके भाव है। भाव क्या है? सर्वदा विशुद्धा खंडिता भाव है। और ये जो राग, इनके राग क्या है? भैरव राग। भैरव राग में ये क्या करती है? गाना गाती है। इसलिए लिखा है इनका प्रिय राग भैरव, कलिंगड़ा रस है उसमें। और इनका प्रिय वाद्य क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स। ललिता देवी क्या बनाती? बजाती है, बिना बजाती है। ललिता देवी का मुख्य नायिका है अनंग मंजरी, लवंग मंजरी एवं रूपमंजरी इनकी अनुगत्य में। ललिता देवी के आयु कितना है? वयस, एज 14 साल 3 मास 12 दिन लिखा गया है। 14 वर्ष 3 मास 12 दिन है। और इनके विशेष जो है 8 सखियां इनके साथ सदा सर्वदा रहती है। 8 सखियां के नाम बता रहे हैं। रत्न प्रभा, रति, रतिकला, सुभद्रा, भद्र रेखिका,
सुमुखी, धनिष्ठा, कलहुंसिनी और कलापिनी, ये अष्ट सखियां जो है ये ललिता की दल में रहती है। श्री ललिता देवी सखियों में प्रधान है। प्रकारांतर में राधा रानी के समस्त लीलाओं का परम अध्यक्ष रूपिणी है ये, है अध्यक्ष रूपिणी है ये, माने सुपर कंट्रोलर है। जैसे कैबिनेट में अध्यक्ष बनता है ना, है अध्यक्ष जो होता है, जो पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, स्पीकर, हाँ स्पीकर बैठते हैं ना वो, है वो क्या करती है, सबको जितने भी होता है सबको कंट्रोल करता है आज में पार्लियामेंट में जो बैठता है। और जैसे जिसको जो आदेश दिया जाता है उसके ही वो बोलना पड़ता है। जरूर हो तो पार्लियामेंट के सभा को स्थगित भी कर सकते हैं, है? ठीक उसी प्रकार ये ललिता देवी जो है परम अध्यक्षा रूपिणी है। निरंतर ब्रह्म भाव एवं प्रखरा एक अद्भुत संमिश्रण इनकी चेष्टा से परिलक्षित होता है। प्रगल्भा किसको कहा जाए, शासन करता, बोले वेरी टॉकेटिव है। कृष्ण भी इनसे भी डरते हैं। कभी कभी कृष्ण गोपियों की जो है ताड़न आदि भाषण करते रहते हैं, माने माने विदाउट रीजन है। कृष्ण क्या करते हैं गोपियों की, है वो करते रहते हैं, क्या बोले उत्पात करते रहते हैं उत्पात समझते हो, मैंने मेकिंग डिस्टर्बेंस। कृष्ण समटाइम्स ही मेक्स डिस्टर्बेंस द गोपीज। पर ललिता देवी जब रहते हैं, ललिता देवी के भय से कृष्ण भग जाते हैं, बोले इतने प्रखरा है कृष्ण की भी कंट्रोल करते। राधा जी की तो है ही है। इसलिए ललिता देवी के कहा गया क्या है, प्रखरा एक क्या उसमें ब्रह्म और प्रखरा रस अद्भुत संमिश्रण इनकी चेष्टा से ही परिलक्षित होता है। प्रिय प्रियतमा को राधा कृष्ण के आनंद रस वर्धन कराती है। कैसे, अनेक प्रकार जो है प्रहेलिका, प्रहेलिका समझते कि नहीं, प्रहेलिका शब्द क्या होता है, अनेक प्रकार शब्द की जो है व्यंजन तक व्यंजन करके हास परिहास के व्यंजना वाक्य आदि दे करके है समझ वो है बोलते रहती है। शास्त्र में तीन प्रकार कहा गया, एक है अभिधावृत्ति और एक लक्षणावृत्ति और दूसरी होता है व्यंजनावृत्ति। व्यंजनावृत्ति उसे कहा जाता है परिहास आदि के द्वारा जो शब्द आदि व्यवहार आदि होते हैं उसके कहा जाता है व्यंजनावृत्ति। समझ में आ रहा है कि नहीं, व्यंजनावृत्ति किसको कहा जाता है, परिहास आदि के द्वारा। जैसे कहते हैं ओहो आप कितने सुंदर हो, दैट मीन्स यू आर नॉट ब्यूटीफुल है। ओहो तुम्हारे व्यवहार कैसे सुंदर है, ऐसे तुम दूसरे के सिखाओ है। जैसे महाप्रभु जाते ना गुंडीचा मार्ग में, जो ठीक से सेवा नहीं कर रहे है, आलस्य करके झाड़ू के पकड़ करके रखा है, इधर उधर थोड़ा करे, तो महाप्रभु पीछे जाकर के उनके पास जाकर के इतने सुंदर व्यंजना वाक्य के द्वारा माने परिहास वाक्य के द्वारा, ओहो तुम्हारे सेवा तो बहुत सुंदर है, माने तुम्हारे सेवा अच्छा नहीं, इसलिए कहा जाता है व्यंजना वाक्य है माने व्यंग वाक्य आदि के। व्यंजना शब्द की अर्थ होता है व्यंग माने लाफिंग एंड जोकिंग वर्ड्स, बट इट इज स्पीकिंग इन इनडायरेक्ट वे, नॉट डायरेक्ट है।
इसलिए उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं ललिता देवी अनेकों प्रकार की प्रहेलिका के अर्थ है में बहुत निपुण है। जैसे प्रहेलिका क्या है एक सुना देता हूं। जैसे कहते हैं अच्छा बताओ कौन शुद्ध होकर के भी अशुद्ध रहता है? वक्र होकर के भी सरल होते हैं, वक्र होकर के भी सरल होता है, उल्टा कैसे हो जाए? पहले क्या बोला? शुद्ध होकर भी अशुद्ध होता है। अब बताओ क्या चीज है? राधा जी की सिर के जो है केस है। केस क्या है? जब सिर में रहता है वो क्या होता है? शुद्ध रहता है। शास्त्र में लिखा गया यदि केस यदि सिर से व शरीर से अलग हो जाता है उसको क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। जैसे नाखून आदि, नाखून और केस ये दोनों शरीर में जब रहता है इसके पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। और ये शरीर से जब अलग हो जाता है, काट दिया जाता है, बाहर गिर जाता है, उसको क्या माना जाता है? अशुद्ध माना जाता है। और वक्र होकर के भी सरल है, वो क्या है? राधा जी की घुंघराल वाले बाल वक्र रहता है। और सरल कैसे सरल? ना राधा जी जब चलती है दूर से ऐसे लगते हैं मानो साक्षात एक बादल की धारा प्रवाहित हो रहा है, इतने सुंदर रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इसी प्रकार अनेक प्रकार के जो है प्रहेलिका है अर्थ के जो है व्यवहार करते रहते हैं। जैसे एक साधारण एक कहता हूं है, तुम्हारे वस्त्र के नीचे क्या है? केस है। केस के नीचे क्या है? बताओ। त्वचा है। आज समझिए। तो इसी प्रकार जो है अर्थ बताया जाता है। और निकुंज लीला में इंद्रजाल की भी पंडिता है। ये है अनेक प्रकार जो है इंद्रजाल की पंडिता है। अनेक बार तंत्र मंत्र आदि की सब करते रहते हैं। इंद्रजाल की क्या किसको कहा जाता है? व्हिच इज नॉट ट्रू, शी मेक्स द इल्यूजन, है इल्यूजन करा देते हैं। ये समस्त विद्या में है ललिता देवी निपुण है, एक्सपर्ट है वो है। जैसे मायदानव के द्वारा इंद्रप्रस्थ बनाया है पांडव जो अर्जुन जो है जहां पर पानी नहीं है ऐसे लगते हुए यहाँ पर पानी के धार प्रवाहित हो रहे हैं और दुर्योधन जाकर के वहीं पर ठहर जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे आग की लहरियां चल रही है ऊपर से दिखाई पड़ती, किंतु जाए तो देखे आग नहीं है। और जहां पर पानी के धार जोर से चलती जैसे वाटरफॉल्स है, किंतु वहां पर पानी है ही नहीं है। इसी प्रकार अनेक प्रकार जो है इंद्रजालिक तंत्र मंत्र में ये पंडिता है। श्री राधा जी की मान आदि सिखाती है ये है। जैसे ललिता अष्टक में आपने पढ़ा ना, दृष्टे दृष्टे वजेन्द्र तनयम तनु सुष्ठुवामम माँ दक्षिणा भव कलंकिनी लाघवाय। कृष्ण जब राधा जी के कुंज में आते हैं, देर से आते हैं, राधा जी मान कर लेते हैं। कृष्ण कान पकड़ करके क्या बोले उठा बैठे होते हैं। तो तथापि राधा जी कृष्ण के इस प्रकार देख करके क्या होते हैं?
द्रवीभूत हो जाता है। देखो हमारे तो प्राण प्रियतम है, इनके अधिक कष्ट देना नहीं चाहिए, है प्रियजन के कष्ट देना नहीं चाहिए। किंतु राधा जी के ललिता देवी क्या कहती है, ये धूर्त है, कपट है, इसके दृष्टे ब्रजेंद्र तनया तनुसुष्ट वामम माँ दक्षिणा भव कलंकरी लाघवाय। हे कलंकरी श्रीमती राधिके, इसके ऊपर अभी किसी प्रकार दक्षिण भाव सबमिसिंग मोड प्रयास मत करो, प्रकट मत करो, इसको उठने बैठने द्वार है। हाँ सुनिए, इसी प्रकार ललिता देवी राधा जी को मान भी सिखाती है, कैसे मान में अटूट रहना है। नाना प्रकार राधा जी के नाना प्रकार शिक्षा देती है, विशेष करके अभिसार आदि कराने में है इनको शिक्षा देती है। हमारी विद्यापति और चंडीदास ये समस्त बहुत लिखे हैं। कंटक गाड़ी पदतल्प सम मंजिर चिर ही झांपी है, ये सब लिखा गया है। दो प्रकार के अभिसार है, एक है शुक्ल पक्ष अभिसार और एक होता है कृष्ण पक्ष अभिसार, और एक होता है अमावस्या दिन के अभिसार होती है, और एक पूर्णिमा के दिन के अभिसार होता है। अभिसार समझते हो, माने अपने प्राण प्रियतम के साथ मिलने के लिए जो जाती है उसके कहा जाता है अभिसार कहा जाता है। रात्रि काल में राधा जी उत्कंठित होती है कृष्ण के साथ मिलने के लिए, है उस समय राधा जी कैसे जाएगी, वो तो राजनंदिनी विश्वभानु राजनंदिनी श्रीमती राधिका, जिनकी चरण कमल कैसे कहा गया बताओ, रातुल चरण कहा जाता है। रातुल चरण की तात्पर्य है जिनकी चरण कमल की नीचे के भाग सोल कैसे इतने सॉफ्ट होता है कोमल होता है, ये मक्खन से भी कोमल हो जाता है। एक चरण रख करके दूसरे चरण जब रखते हुए उठाते हैं ऐसे लगते हैं चरण की नीचे से मानो रक्त के बूंद टपकने वाले होता है, इतना लाल लाल हो जाता है। आज समझिए शास्त्र में वर्णन है रातुल चरण, रातुल शब्द की अर्थ होता है जैसे महाप्रभु के लिए रातुल चरण है मेरा भक्ति हो। रातुल चरण उसके कहा जाता है जिनकी चरण कमल इतने कोमल होता है बोले एक चरण रख करके दूसरे चरण जो उठाते ऐसे लगता है नीचे से मानो रक्त की बूंद गिरने वाला। ऐसे विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका की चरण कमल के रातुल चरण कहा जाता है। वही रातुल चरण महाप्रभु के लिए भी कहा गया है। वही प्रेमेरे ठाकुर गोरा है, इस कीर्तन में देखना पड़ा रातुल चरण वहीं पर लिखा है। पढ़ा कि नहीं, पढ़ो। तो अभिसार करने के लिए जाती है तब कैसे जाएगी, जूता पहन के थोड़ी जाती है। ब्रज में कोई जूता फूता नहीं पहनते अरे कृष्ण संग नहीं पहनते तो दूसरे के क्या बताए हैं। तो रात्रि काल में कैसे जाएंगे, फिर बरसात के समय हो और भी कैसे जाएंगे। इसलिए ललिता देवी राधा जी के जो है ये समस्त शिक्षा आदि देते हैं। कैसे कहते देखो है कंटक गाड़ी पदतल सम मंजिर चिर ही झांपी है। विद्यापति श्लोक में लिख रहे मैथिल कवि विद्यापति, मिथिला के ये कवि विद्यापति है, सीता देवी की जन्म स्थान मैथिल कवि विद्यापति इसको लिख रहे हैं। क्या बोले, कंटक गाड़ी पदतल सम है। ललिता देवी शिक्षा दे रही है। ये देखो ललिता देवी कह रहे हैं हे राधे पहले अपने गृह में चलने की अभ्यास करे है। देखो बरसात के समय है तुम कैसे जाओगी है। रिमझिम के बारिश होती है पूरा सारे जो है रास्ता क्या हो जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है। आज रिमझिम बारिश हो है, बूंद टपकते रहे
उससे कीचड़ क्या होता है, ज्यादा होता है? घर बंगाल में आपको दिखाई पड़ता रहता है ना, है? आप लोग शहर में रहते हो पता नहीं चलता है। गांव के तरफ जाओ, रास्ता देखोगे, है वो क्या, जब जब रिम झिम जोर से बारिश हो तो रो करके चले जाते हैं इसको, और जब ऐसे झिम 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 रिम झिम करे बारिश हो, वो बारिश क्या होता है, कीचड़ ज्यादा होता है? यहाँ तक भी हम लोग बंगाल में देखा, हम लोग के जो रास्ता जो होते हैं ना, ये जो है आधा घुटनों तक है, हाफ घुटनों तक जो हो जाता है? आज समझ में नहीं है? चलना बहुत कठिन होता है? आधा घुटनों समझ में नहीं है? पैर इतने गड़ जाता है, चलना बहुत कठिन होता है। तो उसी प्रकार भी करें, ये देखो तुम तो राजनंदिनी हो, तुम तो कभी तो अभ्यास तो नहीं किया, अभी क्या करो, अभ्यास करो। कैसे? इसलिए ललिता देवी क्या शिक्षा दे रही है? ये कंटक गाड़ी पदतल सम मंजिर चिरही झांपी। पहले आंगन में पानी डाल देते हैं, और पानी डाल करके राधा जी की सिखाती है कैसे कीचड़ में कैसे चलना है। राधा जी थोड़ा 2-4 कदम चलने के बाद गिर जाती है, फिर ललिता देवी उनको पकड़ के सिखाती है, जैसे माँ छोटा बच्चा को जैसे चलना सिखाती है, ठीक उसी प्रकार ललिता देवी राधा जी को जो है कीचड़ में चलना सिखाती है। फिर कहती है देखो अंधकार रात्रि है, कहां पर ब्रज की जो है कांटे आदि तो रहता है, तुम्हें क्या पता चलेगा, सहन करना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए कहते हैं कंटक गाड़ी, छोटे छोटे कांटे के जो है गाड़ देती है, इधर एक रख दे, उधर एक रख दिया, उधर रख दिया, बोले इसके ऊपर चलो, है? अरे कंटक गाड़ी पदतल समो मंजिर चिरही झांपी। फिर ललिता देवी कहते हैं देखो तुम्हारे पैर में तो ये है, क्या बोले, नुपुर है, वो तो रुनझुन शब्द करेगा, है? और रात्रि काल में कोई एक लड़की अकेली जाए तो सबके नजर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है? और विशेष कर रुनझुन रुनझुन वो नुपुर के शब्द होते हैं, इसलिए सब क्या करें, कौन जा रही है? इसलिए क्या करते हैं, ललिता देवी सिखाती है ये नुपुर के जाए ऊपर उठा करके टाइट करके बांध लो, है? घुटने तक जहां तक हो सके, है? नुपुर ना बजे, है? फिर कहती है देखो, है बरसात के समय कहीं छोटे छोटे सांप भी निकल करके आ जाए तुम्हें काट ना दे, इसलिए भागुरी ऋषि के पास जा करके एक सांप को जो है वशीकरण करने के मंत्र सीख लिया जाओ, है? स्वयं ललिता देवी ने कहा, ये समस्त मंत्र में सब जानकारी है? ललिता देवी राधा जी के जो है सर्प वशीकरण मंत्र सिखाती है, इस मंत्र को जप करो, है? अंडरस्टैंड? इस मंत्र के जप करने से सांप के ऊपर पैर देने पर भी सांप तुम्हें काटेगा नहीं, है? ये सब शिक्षा देती है? फिर ललिता देवी सिखाती है देखो तुम्हारे अंग कैसे हैं, तप्त कांचन, जैसे राधा रानी यदि रात्रि काल में अंधकार रात्रि में चले, लोग देखे एक सरने के पुत्री जैसे कहां जा रहे हैं, क्यों तप्त कांचन गौरांगी ना, इतने सुंदर उनकी शरीर की दिव्य अंग कांति छटा, इफाल्जेंस ऑफ आवर बॉडी, है? राधा जी की अंग कांति के छटा कहा जाता है, सारी दिशा को क्या कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए कहती हैं ललिता देवी कहती हैं जाओ रति मंजरी, तुम एक काम करो, कपूर लेकर के आओ, है? कैंफार, है? कैंफार लेकर के राधा जी की अंग में प्रलेप कर दो, है? ज्योत्सना रात्रि में क्या करते हैं, कैंफार प्रलेप कर देते हैं, और अंधकार रात्रि में मृगमत, है? कस्तूरी कैसे वर्ण होता है, काले वह होता है, उसी के जो है प्रलेप कर देते हैं, जैसे दिखाई ना पड़े,
हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी इसके सुंदर वर्णन किया। मधुर मधुर निशायं ज्योति उद्भासितांग है, मधुमास चैत्र मास। और उस चैत्र महीने में जब राधा जी राका पूर्णिमा तिथि में कृष्ण के साथ मिलने के लिए जब जाती है, तब राधा जी की अंग कांति ऐसे सुंदर शुभ्र ज्योत्सना के साथ मिल जाता है, चंद्र की किरण के साथ मिला करके कपूर लगा दिया जाता है। इसलिए इसी प्रकार राधा ललिता देवी सिखाती है अभिसार कैसे, और राधा जी कैसे चलती है। द्युतिन हस्ता मधुर मधुर निशांग ज्योतिर्भासितम द्युतिन हस्तम, माने राधा जी कैसे चल रही है, अकेला नहीं जा रही है, अपने द्युति बा कोई विशेष सखियों के बाद रूपमंजरी अथवा रति मंजरी के स्कंधदेश कांध में हाथ रख करके चल रही है, द्युतिन हस्ता है। और फिर कहती है, देखो राधे, ललिता देवी सिखाती है, राधे कहीं देख करके कुछ देख करके तुम हंसना नहीं, क्योंकि इस रास्ते में चलते चलते कभी सखियां जो है राधा जी के कृष्ण उद्दीपन सूचक कई कथा बोलते रहते हैं, उससे राधा जी क्या मुस्कुराती है, हंसती है। तो ललिता देवी कहती है, देखो जब अभिसार करोगी ना, अभिसार समझते हो, जब अपने प्राण पे देते हो, व्हेन यू रेंडिव टू मीट विद बिलवेड, उस समय क्या हंसना नहीं है, क्योंकि तुम जो हंस पड़ो फिर और एक विडंबना हो जाएगा। विडंबना समझते कि नहीं है, ऑब्स्टैकल से आ जाएगा, विडंबना आ जाएगा। क्या विडंबना हुआ, ये देखो राधे तुम्हारे दंत पंक्ति जो है एक चंद्रमा क्या है 30 चंद्रमा की सौंदर्य माधुर्य को भी पराभूत करने वाले, क्योंकि राधा जी के दंत पंक्ति इतने सुंदर शुभ्र कहा गया। शुभ्र माने सफेद, सफेद वर्ण राधा जी के दंत है। और फिर दांतों के ऊपर क्या है, क्या बोलते हैं इसको, मसूरे जो है, गम्स इतने लाल रंग के होता है, मानो राधा जी हंस पड़ी लोग सोचेगा क्या ये सूर्य उदय हो रहे, एक ही साथ में 2 सूर्य और 30 अथवा 32 चंद्रमा मानो उदित हो रहा है, समझ में, 32 दांत होता है ना, और ऊपर जो मसूड़े जो होता है लाल रंग के होता है, या नीचे ऊपर ऐसे लगते हैं मानो एक साथ में 2 सूर्य और बीच में चंद्रमा उदित हो रहे। लोग देख करके डरे, बोले क्या बात, इतने सुंदर। इसलिए ललिता देवी ये सब शिक्षा देती है, ये समझते विद्यापति चंडीदास के पदावली में ये सब सुंदर वर्णन है। आज समझिए, बंगाल में यही पदावली लेकर के सारे रात जो है कीर्तन करते रहते हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे यही सब कीर्तन सुनने के लिए हम लोग जाते, राधा जी की मान भंजन और ये समझते सुने, इतने सुंदर लहर है, अखर देते थे, और रोते रोते सब कीर्तन करते थे, जब भी सब सहजिया वैष्णव आज समझे। बस मेरा याद है, मेरे गांव में एक व्यक्ति था, वो शराब पीता था, बहुत शराबी था वो, और बस उनके कह दो चाचा आज के आपको जो है माल खिलाएंगे, माल खिला माने शराब, बस बोले क्या करना है, बोले आज कीर्तन में जाना, बोले चलो। हारमोनियम लेकर के जब बैठ जाएगा भाई, और क्या बोले 3 घंटे उसका होश नहीं रहेगा, इतना कीर्तन करते हैं, रोते रोते सबको रुला देंगे भाई। है तो शराबी, पता नहीं उनके कौन सा एक गुण है, जादू है। लोग शराबी पी करके अंडा संडा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, किंतु मैंने देखा, सच मैंने देखा है, उनके शराब दे दो बस है,
10-15 रुपया उस समय था शायद, है, बस एक बोतल दे दो और बस हारमोनियम लेकर के बैठ जाएंगे, है, और इतने सुंदर, है, राधा कृष्ण की कीर्तन करे और वो सबको रुला देंगे। कभी उनके मुख से जो है अंडे संडे इधर उधर की बात नहीं होता है, गाली गलत तो कभी नहीं करते। पता नहीं सबके एक एक है महिमा है, हम क्या करें, है। 3 घंटे 9 से बाद 10 से लेकर के रात 12-1 बजे तक बस यही सब कीर्तन चलता रहता था, है। जितने श्रद्धा इतने लोग, विशेष करके गर्मी के समय लोग तो बोले चलो, है, और एक हैजाक लाइट जला देते, 2-4 हैजाक लाइट जमते हो जला दिया, बस गांव के, है, चौतरा में बैठ गए, बस चलते रहे। यही सब कीर्तन करते, मेरा यही सब याद होता है, एक एक अक्षर देते है, इतने सुंदर। जब भी उससे सुनकर के शुद्धाक्ति नहीं होती है, किंतु ज्ञान तो होता है, समझे, कुछ तो संस्कार भी पड़ जाता है। इसी प्रकार ललिता देवी राधा जी को क्या करती है, अभिसार करण में ये सब शिक्षा दे देते हैं, समझे। इसलिए ये बहुत सुंदर सुंदर पदावली है। मेरा एक किताब था, कहाँ मुझे मिल नहीं रहा, उसमें 650 किताब ये है, कीर्तन है। महाप्रभु के पहले जितने कीर्तने आए, वैष्णव आए महाप्रभु के काल युग में, और महाप्रभु के बाद नत्तम दास ठाकुर पर्यंत जितने भी कीर्तनिया हैं वैष्णव है, सब पदावली उसमें है। वो मेरा एक किताब था, पता नहीं कौन किसको दिया था, मैंने पता नहीं। एक बार मैंने तीर्थ महाराज को दिखाया था, और तीर्थ महाराज पढ़ा था, पहले वो वापिस दिया कि नहीं दिया मेरा याद ही नहीं है। वो किताब कहाँ चले गए, है, बहुत अमूल्य किताब था वो। 650 नहीं वैष्णव की पदावली, और उसमें कीर्तन तो होगा कम से कम 6-7 हजार कीर्तन है, 650 वैष्णव, माने प्राग चैतन्य युग और चैतन्य परवर्ती युग, ये तीनों वैष्णव की। नत्तम दास ठाकुर, विद्यापति चंडीदास से लेकर के ये लोग महाप्रभु के पहले, फिर महाप्रभु के समय जितने आए हैं, ज्ञानदास से लेकर के बाद जितने भी आए हैं, फिर महाप्रभु के बाद जितने आए, जैसे नत्तम दास ठाकुर से लेकर के तो महाप्रभु के बाद आए है, इनके सब पदावली। बहुत अमूल्य ग्रंथ है। मैं बंगाल से वो क्या बोले, वो खरीद करके लाया था, एक वो ये बेच रहा था, क्या बोले, वो कवाड़ी बेचते हैं ना, हैं, तो उसमें मैंने दिखाई पड़ा है, थोड़ा टूटा फूटा था, और मैं उसको दे दिया था। उसको दिया, वो देना नहीं चाहते, वो नहीं इसको मैं बेचूंगा। मैंने उस समय जो है उसको 50 रुपये दिया था, दे करके मैं लाया था, बहुत साल पहले की बात है। बहुत सुंदर ग्रंथ था। फिर मैंने उसको बाइंडिंग किया, मथुरा में यहीं पर रखा था। फिर पता नहीं कहाँ चले गए, ईश्वर इच्छा। मैं बहुत ढूंढा, मेरा तो अलमारी में नहीं मिल रहा था। बहुत सुंदर ग्रंथ था वो ग्रंथ जो है बहुत तो ललिता देवी इस प्रकार जो है सिखा दिया। थोड़ा पढ़ लेता हूँ। ललिता, यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर कथा हैं। राधा कुंड की उत्तर में ललितानंद कुंज वर्णन किया गया है। राधा कुंड की उत्तर दिशा से वायुकोण पर्यंत ललितादि अष्टप्रियतमा सखीदे के स्वनाम में विख्यात कुंज शोभा शोभित होते हैं।
वह सकल कुंज में श्री राधा कृष्ण विहार आदि करते रहते हैं। अनेकों प्रकार क्रीड़ा कौतुक निमित्त सखी के साथ स्वयं कुंजों में उपस्थित होते हैं और समस्त सखियां वह समस्त कुंजों आदि के अपने हाथ से संस्कार आदि करती हैं। जावतीय कार्य जितने भी कार्य जो है समस्त सखियां के साथ है ललिता देवी अपने जत्न के साथ वह संपादन करती है। सखियों में ओसकल कुंज के प्रांत में विभिन्न सीमांत में उपवन उद्यान शिल्प कलागृह विराजित है। वह सीमा सकलेर मध्यवर्ती में जे सकल वृक्ष प्रकट हुए हैं वह दिखे श्रेणीबद्ध होकर के रहते हैं। अर्थात राधा कुंड की कहते हैं चारी दिशा में जो वृक्ष आदि कैसे है सारीबद्ध होकर के रहते हैं। इतने सुंदर जोग माया ऐसे करते रहते हैं। विदेश में जाने से ये सब कुछ दिखाई पड़ता रहता है। विदेश में जाओगे ना रास्ता के दोनों तरफ इतनी स्ट्रेट रास्ता होता है और दोनों तरफ जो है वृक्ष जो है इतने सुंदर के लगा जाते हैं। 100 किलोमीटर आप चले जाओ ये आपसे ऐसे लगेगा आप वो वृक्ष के टनल होकर के जा रहे हो। टनल समझते हो ना है। दोनों तरफ ऐसे से वृक्ष सारीबद्ध होकर रहते हैं इधर से तरफ इधर से बिल्कुल हो। और जो जो वृक्ष होगा सब एक ही प्रकार के वृक्ष होगा है। जैसे इस रोड में वो क्या उनके देश के जो भाषा जो है वो सफ़ेद हो तो सफ़ेद है। जैसे बाच ट्री होता है ना सफ़ेद लंबी लंबी होता है। और इधर क्या कहते हैं पार्क में जो लगाया जाता है यूक्ले ने क्या बोलते हैं यूक्ले उस है। और अनेक प्रकार ये उसमें एक ही रोड में जो है वो एक ही प्रकार की वृक्ष दोनों तरफ। फिर दूसरी रास्ते में जो है और दूसरी प्रकार की जो है वृक्ष लगते हैं बिल्कुल पैरेलल होकर के। इधर एक तो इधर है बीच में रास्ता और डिस्टेंस भी बिल्कुल जो है उतना ही रहेगा है। और दोनों वृक्ष की डाल जो है आकर के है बहुत ऊंचे होते हैं ऐसे एक साथ में मिल जाते हैं। उसमें वो करते हैं क्या बोले काटते रहते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में है। हाँ वो करते रहते हैं और इतनी सजा के रखते हैं जैसे आपकी गाड़ी चल रही है दूर से ऐसे लगेगा जैसे आपको ही मानो वृक्ष की टनल होती हुई आप जा रहे इतने सुंदर। और कभी कभी वहीं पर भी फूल भी प्रकाशित होता है इतने सुंदर लगता है क्या बताएं। बोले वास्तव वृंदावन की बुद्धि बने। और जब विशेष करके गर्मी के समय होता है ना और उनकी यदि आप ये होकर के खेती होते के जाते हो तो उन पे अनेक प्रकार वो क्या बोले सरसों के खेत होता है सरसों तो केवल सरसों ही खेत होगा बस पीला पीला। वो बीच में गेहूं धान ये सब नहीं रहेगा केवल रास्ते के दोनों तरफ आपको क्या दिखाई पड़ेगा पीले पीले सरसों घास और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा गेहूं के खेत हो तो दोनों तरफ केवल ही गेहूं वो लोग मिक्स नहीं करता। हम लोग जब चलो हमारी खेती है यहाँ पर गेहूं लगा दी यहाँ पर वो लगा दी ऐसे नहीं ऐसे गन्ने के खेत हो केवल दोनों तरफ आपके गन्ने के खेत है। 50-60 किलोमीटर चलो केवल गन्ने की खेत दिखाई पड़े। विचित्रता कहने की तात्पर्य जो है ठीक उसी प्रकार जोग माया राधा कुंड की चारी तरफ दोनों तरफ ही है दूध में श्रेणीबद्ध होकर के है वृक्ष आदि रोपण करते हैं। क्षुद्र तरंगलाकार चित्र रचनायुक्त विशुद्ध स्फटिकमय वह समस्त अप्रशस्त आश्चर्य पथ में मध्य भाग में मरकत मणि द्वारा व्याप्त रहता है। मरकत मणि एक प्रकार मणि होता है उसे कहता है मरकत मणि लाल रंग के आभा होता है। कितने सुंदर वर्णन होते हैं। वह सकल पथ
रास्ता दोनों तरफ उपवन में बीच बीच में दारोदेश भी है, गेट सजा करके रखते हैं। ऐसे सुंदर लगते हैं जो वो वृक्ष की डाल आकर इसमें गए, ऐसे अपना आप एक मानो सुंदर गेट बन जाता है, क्योंकि चलते चलते आपके प्रवेश करना है। उस तरफ से एक रास्ता आ रहा है, इस तरफ से आते हैं। ऐसे लगता है वास्तव में इसलिए करूँ, विदेश में जाने से ये भी दिखाई पड़ता रहा था। इतने सुंदर करके सजाते हैं वो लोग, कला जो होता है। और दारोदेश में अनेकों मणि रचना विन्यस्त होते हैं, जहाँ देखने से नाना प्रकार भ्रम उत्पन्न हो जाता है। राधा कुंड के उत्तर दिगवर्ती निकट अष्टदल पद्म के आकार होते हैं। अष्टकुंज में विराजित अनंग रंगत अंबुज नामक एक ऐसे सुंदर चत्तर विराजमान है। देखो अष्टसखी जो कुंज आदि है, वो सब तो कुंज एक दूर से देखने से ऐसे लगेगा मानो एक केवल कमल प्रस्फुटित हो जो है। जैसे श्वेताब्ज कुंज, श्वेत माने श्वेत वर्ण का, वो केवल श्वेत वर्ण, जैसे दूर से आप देखोगे ये मानो एक सुंदर जो है श्वेत वर्ण के सफेद एक कमल खिले हुए हैं। इसी प्रकार कहते हैं अनंग रंग अंबुज नामक एक चत्तर विराजमान है। सुंदर हेम रम्भावली वह केसर है। वह जो पुष्प जो खिले हुए हैं उनकी कैसे सुंदर केसर, कैसे हेम रम्भावली, हेम माने स्वर्ण, रम्भावली है सुंदर रूप में ऐसे विराजमान केसर जैसे लगते जा रहे हैं। सहस्रदल कमलकार हेम निर्मित कुट्टिम सकल कर्णिका लीला उनकरे कखनो विस्तीर्ण कभी संकुचित स्वाभाविक होता है। वो समझते ऐसे कर्णिका इतने रहता है, कभी वो संकुचित हो जाए अपने आप है। पुष्प की जो एक दूसरे का मिलके जो होता है ये धार जिसको कहा जाता है। आप देखिए ना पुष्प की ऐसे जो पंखुड़ियाँ आते हैं, एक पंखुड़िया दूसरे पंखुड़ी के मिल के जो बीच में होता है। लीला अनुकूल विस्तीर्ण एवं कभी संकुचित हो जाए स्वाभाविक रूप में है। ये सब अपराकित है। ललिता शिष्या कलावती उसके संस्कार विषय में अत्यंत जत्नवती रहते हैं। उसके संस्कार करना पड़ता है। लोकवत्व है ना, कहीं थोड़ी सी कहीं कुछ हो गया तो कलावती क्या करती है, उसको ठीक कर देती है। सकल ऋतु में समस्त प्रकार सुख अनुभव होता है। विविध केली विनोद के आकार स्वरूप है। ललितानंद कुंज है। ललिता देवी के कुंज के नाम क्या रखा गया, ललितानंद कुंज है। वैश्य के साथ निकुंजराज श्री राधा कृष्ण के पट्ट मंदिर में विराजमान होते हैं, जहां पर सर्वलक्ष्मीमयी शोभा संपत्ति सदा सर्वदा विराजमान होते हैं। माने साक्षात लक्ष्मी देवी है, एक नहीं अनंत लक्ष्मी देवी, अनंत करोड़ क्या बोले वैकुंठ के लक्ष्मी आदि आकर के मानो उसके शोभा को वर्धन करते रहते, बढ़ाते रहते, इतने सुंदर है। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्म जार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचजा पराप्रदे है। अनंत कोटि विष्णुलोक, एक नहीं कितने वैकुंठ के है, वो सब आ जाते हैं और सेवा आदि के परिपाटी दिखाते हैं। वास्तव उस जगत में नहीं जाए तो क्या समझे है। इस जगत की हम सुन करके तो बस इतना ही होते जा रहे है। एकमात्र कल्पना भी कर लेते हैं, अच्छा वो कितने सुंदर
है। किंतु जब आप उस चित जगत में जाओगे देखोगे कितना सुंदर शोभामान है। वो समस्त कमल सदृश पंच इंद्रिय आह्लादकार होता है। रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि के द्वारा राधा गोविंद की जो है सेवा करती रहती है। वो कमल स्वाभाविक रूप में घ्राण देती, घ्राण आ जाते ना, स्मेल, राधा कृष्ण के आनंद प्रदान करती है। कमल विकसित होकर के रूप आंखों की जो है सौंदर्य वर्धन करते रहे। आंखों की कार्य क्या है? रूप दर्शन करना। बोले उसको देख करके जुगल सरकार स्तंभित हो जाते हैं, कितने सुंदर रूप है। स्वयं जो है कृष्ण, स्वयं राधा जी है, वह समस्त कुंज की जो है वर्णन कृष्ण के कराते हैं। दर्शन कर देखो, ये ललिता देवी के कैसे सुंदर कुंज है, वर्णन करते हैं। इसके रूप माधुरी स्वयं राधा जी कृष्ण के जो है बोलते रहते हैं, और कृष्ण उसके सुन करके कितने प्रसन्न होते हैं, इसलिए कह रहे हैं। और इतने सुंदर शीतल भी गुण, शीतादि गुण युक्त होता है। कमल की जो शीतलता है आकर के राधा गोविंद की त्वचा को जो है स्पर्श करते हैं। जैसे गर्मी के समय आपके एसी चले है, जैसे वो हवा आकर के आपके त्वचा को क्या करते हैं? स्पर्श करा देते हैं और ठंडापन लेकर के आते हैं। उसी प्रकार वो समस्त पुष्प की इतने सुंदर है जो शैत्य भाव, कमल में शैत्य भाव रहता है, शैत्य माने शीतलता जी, ऐसे आकर के राधा कृष्ण की त्वचा को स्पर्श कर शीतल करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं पंच इंद्रियों के द्वारा आह्लाद करो, शैत्यादि गुण युक्त होता है। वह कर्णिका के बाहर बाहर में स्वर्ण, वैदुर्य, नीलमणि, स्फटिको, पद्मराग द्वारा खचित 5 मंडप विराजित शोभा संपादन करते हैं। एक स्वर्ण के द्वारा, वैदुर्य मणि के द्वारा, इंद्र, नीलमणि, स्फटिक और पद्मराग है। मंडप में मध्य देश में विविध रत्न निर्मित मिथुन भाव संपन्न मृग, पक्षी, देवता, मनुष्य, अन्य प्राणी देव, गंधर्व के विचित्र मूर्ति स्थापन करते रहते हैं। देखो मंडप जो होता है उसमें ललिता देवी ने क्या प्रस्तुत किया? अनेक प्रकार पक्षी के जो है मूर्ति स्थापन कर दिया है। और वो पक्षी क्या है? एक एक, जैसे सफेद पक्षी है तो केवल सफेद पक्षी रख दिया मूर्ति, जैसे ऐसे लगेगा जैसे बर्फ के देश में जाते हैं ना, वो एक प्रकार पक्षी होता है, क्या बोलते हैं? सफेद पक्षी होता है ना, क्या बोलते हैं? इंटरनेट पढ़ते नहीं हो? क्या पढ़ते तुम? जो बर्फ के देश में जो पक्षी होता है ऐसे सुंदर पक्षी, केवल सफेद पक्षी रहता है, ऐसे सुंदर करके, इसलिए कहते हैं मृग है, पक्षी, देवता, यहां तो कि मनुष्य की मूर्ति भी स्थापन कर दी, इसमें लिखा है। अन्य प्राणी, गंधर्व आदि के चित्र विचित्र प्रतिमूर्ति स्थापन करके रहते हैं। इससे किस लिए लगते हैं? रस की उद्दीपना है। शुक्ल, सफेद, रक्त है, हरित, पीत और श्याम, ये पंच वर्ण पत्र होते हैं। पुष्प द्वारा शोभायमान, केसर आदि वृक्ष द्वारा समूह उनके उत्तम चंद्र आतप रूप में शोभित होते हैं। इतने सुंदर रूप में एक वस्त्र के जाए ऊपर लगा दे, चंद्रातप कहा जाता है। आज समझ में ऐसे लगता है ये सोने के झालर जैसे लगता है। आज इतने सुंदर इसलिए लगे। इस मंडप के मध्य भाग में सहस्त्रदल पद्म के आकार, जानु परिमित रत्नमय
कर्णिका के कुट्टिम कर्णिका के नए शोभा विस्तार करते हैं। अनंग रंग अंबुज वायुकोण में बसंत सुखद कुंज है। फिर ललिता सखी के जो है वो कुंज की सारी दिशाओं के जो है फिर वर्णन करते जा रहे हैं। बसंत सुखद कुंज मूल अवधि अग्रभाग पर्यंत कुसुम समाकीर्ण अशोकलता समूह श्वेत अरुण हरित पीत और श्याम वर्ण पुष्प चैर विविध लता राज्य के द्वारा परिकल्पित है। देखो कितने सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। नाना प्रकार के लताओं की द्वारा सुशोभित हो रहे हैं। फिर कौन कौन लता? श्वेत वर्ण की लता है, अरुण वर्ण की लता, हरित पीत है पीला वर्ण और श्याम वर्ण, इसी प्रकार नाना प्रकार लताओं के द्वारा सुशोभित है। प्रशस्त उच्च विस्तीर्ण वो समस्त पुष्पयुक्त अशोक तरुकुंज पुष्प व्यवहार कर्णिदा एवं मिद पुष्प दलाकार अष्टक उपकुंज परिवेष्टित। एक होता कुंज 8 कुंज, फिर ऊपर अष्टकुंज बना दिए। जहां पर पद्मदल आकृति भ्रमर हो, कोयल समूह आकर के निरंतर शब्दमान करते हैं अर्थात कुहू कुहू ध्वनि करते रहते हैं। वह समस्त बगीचा को ऐसे लगता है जो साक्षात प्रकाशमान। इसलिए उस समय कोयल आदि, कोयल समझते हो, कुकू बर्ड्स आकर के लगता है ये साक्षात जो है ये स्थान है। वहीं पर कुहू कुहू रब शुरू करते रहते हैं, करते रहते, इसलिए कह रहे हैं कोयल निरंतर शब्द। ललिता कुंज की नैऋत कोण में पद्म मंदिर नामक चतुष्पार्श्व में चतुर्द्वार युक्त गवाक्ष समित दल है। अच्छा, नानाविध मणिर समूह के खचित बहुविध चित्र विचित्र चतुष्टय शोभित मंदिर विराजमान है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ पूर्व रागदी चेष्टा रास कुंज आदि बहिर्देश पूतनावध से आरंभ करके अरिष्टावध है लीला आदि चित्र विचित्र आदि है प्रस्तुत करते हैं, मूर्ति प्रस्तुत कर देते हैं है ये उद्दीपन करने के लिए। अभी सब ये ललिता देवी के कुंज की वर्णन हो रहा है। ये सारी ललिता देवी के कुंज कितने विस्तीर्ण भूमि, कैसे सुंदर वो कहते हैं। अंदर में क्या है? रास कुंज आदि विलास भूमि, और उसके बाहर क्या है? पुतनावध से आरंभ करके अरिष्टासुर है, कृष्ण के जितने प्रकार के जावतीय लीलाज है उसके एक एक माने स्टैचू बना दिया है। रत्न समूह, अभी समझ गया, रत्न समूह कांति वार किंजल एवं अभ्यंतस्थ गृहगुली गृह समूह उनके कर्णिका है कमल पुष्प के द्वारा कैसे सुशोभित होते हैं। बाहर में पद्मदल आकार में है 16 कोष्ठ विद्यमान है। 16 कोष्ठ क्या है? इस 16 कोष्ठ के मध्य में तार 16टी उपकरण उपकोष्ठ रही है। अच्छा, 16टी वो क्या बोले सेक्शन कोष्ठ है, कक्ष जिसको कहा जाता। उपकक्ष मंदिर के ऊपर भाग में ठीक 16 सब 16 करके बना दिया। ये जो बनाते हैं ना मंदिर, जो बनाते जा रहे हैं 16th स्टेप से वो बना देते हैं। आज समझिए, इसको वीडियो कैसेट में दिखाना पड़ेगा आपको, है आज समझिए, तब याद रहेगा, नहीं तो सब भूल जाएंगे क्या बोलेंगे। एक तो समझ में आ रही कि नहीं है पता नहीं है। ऊपर जोड़ी सन्निवेश भित्ति शून्य स्फटिक निर्मित स्तंभ पंक्ति एवं प्रवाल रचित कभी वक्राकार में ऊर्ध्वगामी महारत्न समूह
जलादि निवारण, गृहच्छादन आच्छादित सुशोभन, कलशराजी है, उसमें जो है एक एक मंदिर के ऊपर जो है एक स्वर्ण कलश भी रखा जाता है, जैसे हमारे मंदिर में है ना, ऊपर जो है कलश रखा गया, उसी प्रकार वह मंदिर की शिखर में कलश आदि विराजमान है। मनोहर देदीप्यमान चित्र आदि वह समस्त एक एक दो इसी प्रकार अनेक प्रकार सोपान माने सीढ़ियां तैयार करते रहते, एक दो से चढ़ने के लिए है। और फिर अनेकों प्रकार पुष्प फल आदि के द्वारा सन्निवेश होते हैं। वैश्य के साथ राधा कृष्ण केली रत्नाकर ललितानंद कुंज में कुंज के अग्निकुंज के पद्मराग रत्नमय हिंदोल कुट्टी में शोभा विराजमान है। जय हिंदोल लीला होती, बैठने के जो है झूला जिसको कहा जाता है झूला है, झूला नहीं समझते हो, स्विंग हैंगिंग, अच्छा चलो जैसे आप समझ लो। ये तो अभी पढ़ते पढ़ते अभी पढ़ रहे हैं, अब जब जाओगे तब होगा। अभी इतने सुनने के लिए मिल रहा है, ये कम है क्या है? आज समझिए कितना सुंदर और समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। वृक्ष बकुल वृक्षद्वय अनेक प्रकार वृक्ष आदि के वर्णन है। बकुल वृक्ष है, जैसे मैंने कहा था है, अनेक प्रकार वृक्ष, आम्र वृक्ष, बकुल है, इसी प्रकार 5 प्रकार के वृक्ष आदि के जाए है, सुंदर सुंदर के सजाया जाता है। इस प्रकार करके हिंदू लाभ द्विदी पाद में अवस्थित अष्टध्रुव में आवृत है। चलो, और अनेक प्रकार जो है गायिका सख्यता के साथ वहीं पर है कीर्तन आदि करते रहते हैं है। ललिता देवी अपने सखियों के साथ है इतने सुंदर सुर स्वर से है कीर्तन आदि करते हैं। जैसे राजाधी महाराज जैसे अपने क्या बोले राज सिंहासन की तरफ जाते हैं है, जिस प्रकार उनकी गायिका के क्या बोलते हैं, बंदीगण है, सिंगार है, उनकी गुणगान करते हुए उनकी चरण में पुष्प अर्पित करते चलते। उसी प्रकार वहीं पर भी है, राधा कृष्ण जब विराजमान होते हैं, ऐसे ऐसे स्टैचू बना है, ऐसे लगता है वो समस्त जो है बंदीगण माने राजा की महिमा गान करते हुए जैसे उनके चरण में दे है, ऐसे लगता है। जैसे आप टीवी में देखोगे ना है, रावण जब जा रहे उनके बंदीगण कीर्तन करते जा रहे, उनकी स्तुति करते जा रहे है, ठीक उसी प्रकार वो समस्त स्टैचू ऐसे लगा है, अनेकों सखी बंदीगण ऐसे लगा है, स्टैचू है वास्तव में कहीं नहीं, और इतने लग रहा है वो राधा कृष्ण की स्तुति करते जा रहे हैं, उनकी विजय घोषणा वर्णन होते जा रहे हैं। राधा कृष्ण की रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य इतने सुस्तर से है, इसलिए उसके कहा जाता है मदन आंदोलनम नामक हिल्लोल आरोहण करते बैठते हैं। और ललितानंद के कुंज के ईशान कोण में नाना प्रकार की कितने हैं, बहुत है तो खत्म करना पड़ेगा। अच्छा आरती करो है, हाँ माधवानंद है, माधवी कुंज अवस्थित है। फिर उत्तर दिशा में सीताब्ज कुंज नामक है, ललिता कुंज की उत्तर दिक में विराजमान है। पूर्व दिक में असिता कुंज, असिताम्बुज कुंज है, ये समस्त वर्णन है। बहुत सुंदर सुंदर दक्षिण दिश में माने ललिता देवी की कुंज, वो जो
आगे पीछे उत्तर पश्चिम दक्षिण है समस्त की वर्णन होते जा रहे हैं। हिमाब्ज कुंज कोई विराजमान है। फिर ये तो केवल ललिता देवी के हो गया, फिर आगे जाकर के विशाखा देवी के अष्टसखी के कैसे कुंज कैसे बना है, ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। आज ललिता देवी की आविर्भाव तिथि है, इसलिए ललिता देवी के बारे में हम आलोचना कर रहे हैं। वास्तव ये समस्त जो है बहुत उच्च स्तर की कथा है। गोविंद लीला में श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में ये समस्त सुंदर रूप में वर्णन है। चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। कहाँ गए जरा